Hello everyone. While you work at RBI, there is one thing which is very very certain, and that is that you would be transferred across the country. आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, they can transfer you at any place. You go to different places, you learn about the culture, about the people, about the food, about the way of doing work there. You learn a lot of things, and trust me, when you talk to different people in RBI, they have one plain, simple, common answer that they really enjoy working at different places. और इस सबके बीच में नॉर्मली जो डिस्कशन होता है दैट इज मोस्टली अबाउट कि हम होम स्टेट पोस्टिंग में रह सकते हैं या नहीं, रह सकते हैं तो कितने साल. दैट इज द कंपैरिजन इज बिटवीन होम स्टेट एंड नॉन होम स्टेट पोस्टिंग. But there is another angle to it, that is between posting at head office and posting at regional office. दोनों में क्या फर्क है, क्या pros and cons हैं, that is what we would be discussing in this video. It has never been explored, but I hope that you would like the information in this video. RBI के offices कितने हैं? 33 offices हैं. I have taken this information from the website. Now this might have been updated, but this is what is available on the website. And if you see, these offices are spread across the country, Srinagar, Guwahati, Imphal as well, even in the remotest states of our country, right, even which we can consider as harsh postings, there also RBI ने ठाना है कि वो लोगों को सर्विस देंगे. They are like hell bent on providing their service to all the people, even in the remotest parts of the country. तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है. अब इन 33 offices में there is a head office at Mumbai and there are regional offices at वेरियस लोकेशंस, ठीक है, जो आप देख रहे हैं मैप में. और मुंबई में भी एक रीजनल ऑफिस है. अपार्ट फ्रॉम हेड ऑफिस देयर इज आल्सो अ रीजनल ऑफिस इन मुंबई. अब दोनों में से क्या बेटर रह सकता है एज इन योर पोस्टिंग? यहाँ पे आप होम स्टेट को भूल जाइए. ऑब्वियसली इफ योर होम स्टेट इज एट हेड ऑफिस यू वुड लव दैट पोस्टिंग. इफ योर होम स्टेट इज एट सम रीजनल ऑफिस यू वुड लव दैट पोस्टिंग. तो होम स्टेट को भूल जाइए. इफ वी टेक दैट एंगल आउट, विच पोस्टिंग कैन बी बेटर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, वो देखते हैं. सबसे पहले रीजनल ऑफिस की बात करते हैं. अब रीजनल ऑफिसेस मोस्टली दे आर इन द स्टेट कैपिटल्स या फिर मेट्रो सिटीज में है, या फिर मतलब जो अच्छे अच्छे सिटीज हैं. आई मीन दे डोंट हैव रीजनल ऑफिसेस इन रिमोट एरियाज लाइक टायर 3 टाउन्स और समथिंग लाइक दैट. तो सारे अच्छे सिटीज में है. द बेनिफिट्स एट रीजनल ऑफिसेस इज दैट फर्स्ट वन इज यू गेट लॉट ऑफ leadership exposure, because there you would be managing a team of say 10 to 20 people. You will learn about leadership skills such as management, ownership, how to get the work done, how to delegate the task. These sub leadership qualities you will learn at the regional office. तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी विच यू कैन ग्रैब एंड शो योर टैलेंट विद रिस्पेक्ट टू लीडरशिप स्किल, बिकॉज ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आपके रिकॉर्ड में आएगा एंड इट वुड बी कंसिडर्ड व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर. प्रमोशंस तो होती रहेंगी. देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक नो सेमिनार्स एट फॉरेन लोकेशंस, डेपुटेशंस टू वर्ल्ड बैंक एंड ऑल, तो वहां पे वो सब कुछ कंसिडर किया जाता है. सो लीडरशिप के लिए एक अच्छी चीज है रीजनल ऑफिस वेयर यू कैन लर्न. देन एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. Regional office में you get exposure to different type of work due to various reasons. One is that regional office is very small, so you meet people during carpools, during your lunch. और काफी RBI officers बताते हैं कि जो रात को उनकी RBI colonies में session होते हैं where people from different departments sit and do chit chat. There they get to know about what work is being done in different departments, which actually increases their knowledge. तो ऐसे इनफॉर्मल सेशन से यू गेट टू नो ओवरऑल दैट व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग, व्हाट एवरी डिपार्टमेंट इज डूइंग. सो यू गेट एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. वेयर एज इन एचओ you might be confined to your department, you might be focused on your department, because there would be a lot of coordination within your department itself at HO, जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं. तो वहां पे शायद आपको एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क ना मिले, जो कि आरओ में मिलता ही मिलता है. और आरओ में अगर कोई रिजाइन कर जाए, कोई लीव पे चला जाए, देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल बी असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन. तो वहां पे भी आपको वो सीखने का मौका मिलेगा. द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज मोर टाइम फॉर सेल्फ एट रीजनल ऑफिस. ऐसा नहीं है कि एचओ में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, बट एट रीजनल ऑफिस आई मीन द लाइफ इज चिल, ठीक है, एज कंपेयर टू एचओ. बाकी रीजनल ऑफिस में भी कभी कभी यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स व्हिच कैन बी
very time consuming, but overall the environment, the work pressure in RO would be less as compared to HO. तो आपको अपनी लाइफ, स्पोर्ट्स, घूमना फिरना, फैमिली के साथ एंजॉय करना, यू विल गेट मोर टाइम फॉर सेल्फ, रीडिंग करना, देयर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू एंड एक्सप्लोर, राइट? तो इन टर्म्स में रीजनल ऑफिस अच्छा है. If I talk about head office, the best thing about head office is that you get to stay there at long time. So people, especially who are from Mumbai or regions around Mumbai, if you want to stay in Mumbai, there is a good chance कि आप अगर HO में अच्छा काम करेंगे, they will retain you there for a longer period. तो ज्यादा ड्यूरेशन रुकने को मिल सकता है, जबकि RO में ट्रांसफर्स होती रहती हैं. You will not get a chance कि आप RO में 10 साल रुक गए, हेड ऑफिस में ऐसा हो सकता है. सो स्टेबिलिटी एक मिल सकती है HO में, इफ यू आर डूइंग गुड वर्क, इफ यू आर अ गुड रिसोर्स इन द आईज ऑफ योर सीनियर्स. Then quality work. This is something which actually defines HO, I would say. See, all the important projects, all the important discussions, all the critical things are being done at HO. तो जितना भी क्वालिटी वर्क है वो हेड ऑफिस में ही होगा. बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट टीम हु इज डूइंग दैट क्वालिटी वर्क, यू विल ऑल्सो गेट एक्सपोजर टू दैट. और नेटवर्किंग करने को बहुत मिलेगा, बिकॉज एक तो HO में बहुत सारे लोग होंगे फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड देयर वुड बी सीनियर पीपल ऑल्सो. बहुत सारे सीनियर लोग होंगे जो आर्मी में बहुत सालों से हैं, बाहर से भी बहुत लोग आए होंगे, दोज हु आर वर्किंग ऑन से असाइनमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ऑल दोज आर वेरी टैलेंटेड एंड यू गेट टू नेटवर्क विद देम. पर अगर आप मेरी बात माने, मतलब मेरा ये मानना है, लाइफ में सबसे बड़ी चीज अगर आपके पास एक है तो वो है नेटवर्किंग. इफ यू आर गुड नेटवर्क, आप कुछ भी करके अपनी लाइफ जी सकते हैं, कमा सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे सिनेरियो. यहां पे आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा RO में, बट इट वुड बी एट अ वेरी कॉन्स्ट्रेंट लेवल. जितने लोग हैं यहां पे विद सीनियर्स, विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बहुत ज्यादा लोगों से मिलेगा. सो in that sense head office can be good. And another thing which is important is कि head office में, because you are doing quality work, there would be more opportunities. If you perform well, if you prove yourself, you might get some good deputations. Good deputations का मतलब आप समझ रहे हैं. आपको suppose आज से 6-7 साल बाद you get an opportunity कि भैया कहीं फॉरेन डेपुटेशन पे भेज रहे हैं 2 साल के लिए, अफ्रीका में या कहीं और डेवलपिंग नेशंस में ही भेजेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स तो नहीं भेजेंगे. तो यू माइट बी कंसिडर्ड इफ यू हैव बीन डूइंग सम क्वालिटी वर्क, एंड अगेन इफ यू आर गुड इन द आईज ऑफ योर सीनियर्स. तो अच्छा काम होता है, एक चेन बन रही है. ठीक है, आपको अच्छा काम मिल रहा है, नेटवर्किंग हो रही है, आप अच्छे काम में प्रूव कर रहे हो, लोगों की नजरों में अपने आप को, मतलब अपना ओहदा बड़ा कर रहे हो, एंड देन यू गेट ऑल दीज डेपुटेशंस, अपॉर्चुनिटीज. सो आई मीन यू स्ट्राइक गोल्ड इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर दैट. तो ये सारा है, बट HO में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है एज कंपेयर टू RO. ठीक है, और यहाँ पे जो आपका काम है दैट वुड मोस्टली बी कन्फाइंड टू योर डिपार्टमेंट. ज्यादा पता नहीं लगेगा दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि आपके ही डिपार्टमेंट इतने बड़े बड़े हो जाते हैं. सो ये कुछ चीजें हैं. ठीक है, बाकी गाइज ये समझिए कि RO हो या HO हो, यू नीड टू लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, डिफरेंट एक्सपोजर्स लेने पड़ेंगे, HO के भी, RO के भी. क्योंकि अगर आप HO में भी ज्यादा देर रह गए, टुमारो यू माइट बी प्रमोटेड एंड सेंट टू द रीजनल ऑफिस. पता लगा 20 साल HO में रह गए और आपको रीजनल ऑफिस का एक्सपोजर ही नहीं है, एंड सडनली यू आर प्रमोटेड एंड मेड हेड ऑफ द रीजनल ऑफिस, और आपको पता ही नहीं है काम कैसे होता है, यहाँ चीजें कैसे चलती है. सो दैट वुड लुक ऑड, राइट? आपके जूनियर्स बोलेंगे यार इसको क्या आता है, इसको यहाँ कैसे भेजते. तो हर चीज की डिफरेंट इंपॉर्टेंस है. एंड RBI, दैट इज वाई इट मेक श्योर कि ज्यादातर शुरू में लोगों को हेड ऑफिस भेजती है, अगर शुरू में नहीं तो फर्स्ट ट्रांसफर में हेड ऑफिस भेजती है, सो दैट यू गेट टू लर्न अबाउट द हेड ऑफिस कल्चर, और आप कुछ अच्छी चीजों पे भी काम कर लो, और उसके बाद रीजनल ऑफिस का भी एक्सपोजर देते हैं अगेन, कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक्सपोजर मिल जाए, लीडरशिप वगैरह आप सीख जाओ. सो ज्यादा सोचिएगा मत कि मुझे हेड ऑफिस मिला, RO मिला. विद टाइम यू विल गेट एवरीथिंग. यू नीड टू हैव पेशेंस फॉर दैट. जहां भी आपको डाला है उस काम को अच्छे से करो. दैट इज व्हाट दे वांट फ्रॉम यू. And this is something which is very resourceful for candidates who have just started preparing for RBI. If you're searching for information related to previous year questions, detailed syllabus, which is not even given in the notification, detailed book list, websites and other resources to do self-preparation, this is a very good guidebook, guys. This is a guidebook, comprehensive guide, which will tell you everything about this exam. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, that is for free. There is a link in the description of this video. वहां जाइए, अपना डाउनलोड कीजिए,
no charge is being paid here. It's completely free. And start reading this. It is not something which is very bulky. I would say just 15-20 pages. You read this and you get all the information. There is no need to go to n number of different YouTube channels or websites. एक ही जगह पे सारी information मिल जाएगी और एक motivation भी मिल जाएगी. And these are our courses for RBI Grade B. In case you want to become part of EduTab community, you can opt for gold or a silver course. Gold pack is complete solution. Phase 1, phase 2 interview. सब कुछ. इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है. Silver pack is mainly for phase 1, phase 2 interview. नहीं, गलत बताया मैंने इसीलिए जानकर, क्योंकि आप इसको समझो. इसमें आपको phase 1 नहीं मिलेगा. Quant Reasoning English नहीं मिलेगा. काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं. आई एम मेकिंग इट क्लियर. यहाँ पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा, सिर्फ जीए यू विल गेट इट फॉर फेज 1, बट फेज 2 एंड इंटरव्यू विल गेट एवरीथिंग. एंड ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू चेक द सैंपल मटेरियल. अगेन गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ लिंक. क्लिक ऑन दैट लिंक, डाउनलोड द सैंपल मटेरियल, चेक द क्वालिटी, समझ आ रहा है नहीं, और कॉम्प्रिहेंसिवनेस जरूर चेक कीजिएगा. ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ा दिया है वो समझ आ रहा है लेकिन एग्जाम में कुछ और ही आ जाए. सो कॉम्प्रिहेंसिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और वीडियो में जाओ, बहुत सारे लिंक्स हैं यार, सब आपके लिए यूजफुल है. उनको यूज करो, मजे लो और चिल करो और सीरियसली प्रिपेयर करो. यही मैं बोलूंगा. चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.